Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. This is Fareen and I hope you guys are doing good. So yes, आपने टाइटल तो देख लिया होगा. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड बेस्ट है. So yes, I am in a stage wherein I have to decide कि what is best for my child. I have a daughter who is 2.5 now, not even 2.5, she's 2 years 4 months now. So yes, हमें तो हमारे टाइम पे यही था कि भाई हमने स्टेट बोर्ड में पढ़ा है, हमने सुना है. मेरी बात कर रही हूँ, मैंने तो सिर्फ स्टेट बोर्ड सुना था. मुझे हमारे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं आइडिया था कि CBSE भी कुछ होता है. बट हाँ, CBSE तभी भी एग्जिस्ट करता था. बट नाउ व्हेन इट्स टाइम कि मुझे अपनी डॉटर के लिए डिसाइड करना है कि कौन सी स्कूल में एडमिशन ले, कौन सा बोर्ड्स ले, इतना चैलेंजिंग है. मैं लिटरली बता रही हूँ ना, मैं डिप्रेशन में चली गई थी. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ओके, बिकॉज व्हेन माई डॉटर लाइक टर्न 2 years old, तो I was like, let's hunt for a school, good school. My family was like, it's too early, the child is just 2 years old, why do you have to rush? But then I had no idea initially कि बच्चों को कौन सी एज में कौन सी ग्रेड में एडमिशन लेना होता है, whether it's nursery, it's junior KG, you know, what is the age criteria to, you know, take admission in a school for a child. I was completely blank, so I was just rushing. I met a friend जिसकी डॉटर मेरी डॉटर के एज सेम है. ओके, सो शी वाज लाइक, फरीन, आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन फॉर माय डॉटर इन नर्सरी. आई वाज लाइक, व्हाट आर यू टॉकिंग? मेरी फैमिली तो बोल रही है शी इज़ टू यंग नाउ, वी स्टिल हैव 1 more year. Then I came back home and I started doing good research on Google, started watching YouTube videos कि what age is the right age to, you know, take admission in the school for the child, what has to be it has to be nursery, play school or whatever, etc. I got to know now it is the right time that the daughter is, you know, eligible to go in a nursery school. एंड देन ये तो क्लियर हो गया था, भाई चलो ठीक है, बच्चा 2.5 से 3 साल का जब हो जाता है तो बच्चे को नर्सरी में एडमिशन लेना चाहिए. अगर आप नर्सरी से पढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हो तो हमने भी नर्सरी से ही पढ़ाई की थी. देयर आर पीपल जो इनिशियली प्ले स्कूल में भेजते हैं एंड देन जूनियर KG से प्रॉपर फुल फ्लेज स्कूल में एडमिशन लेते हैं. तो आई वाज लाइक, ठीक है, नर्सरी से विल टेक अ फुल फ्लेज स्कूल में एडमिशन सो दैट इट इज़ प्रॉपरली कंटिन्यूड. ये डिसाइड हो चुका था. बात आ रही कि स्कूल का सिलेबस क्या रहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिसके यू नो हु हैव किड्स एंड हु आर लाइक ऑलरेडी इनटू स्कूल, सो आई वाज जस्ट इंक्वायरिंग विद ऑल ऑफ देम. जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट बोर्ड्स, लाइक एवरी स्कूल इज ऑफरिंग डिफरेंट करिकुलम्स. तो आप भी रिलेट कर पाओगे कि इट इज़ वेरी crucial for a parent to decide कि what is best for their child. And we keep, you know, starving for the best. We keep struggling कि भाई हमारे बच्चों को हमें बेस्ट देना है, कि we have to do the best for our child. तो हमने भी वैसे ही स्ट्रगल करा. and then I started talking to people whom I know. A lot of them said कि go for CBSE. A lot of them were like, you should go for state board because that is the most easiest. And then there were people who have you know, enrolled their child for ICSE. A lot of ideas, you know, came from here, there and everywhere, and that started confusing me a little more. I did a lot of research. So जब भी मैं सुबह उठती थी, the first thing I used to do was, you know, check for a good school, Google and YouTube videos. You know, I used to listen to parents making videos on how did they choose a good school, a good curriculum for their child, and I started comparing. I was, you know, it was all a mess. It was, you know, literally a mess in my head. I was not able to figure out okay, what has to be done for my child, because me being a parent wanted the best to happen. So then I got to know that state board जो है, जो हमने पढ़ा है, उसके बाद आ गया CBSE एंड देन आया ICSE, IB, IGCSE. इतने सारे डिफरेंट करिकुलम्स आ चुके हैं. तो स्टेट बोर्ड आई वाज लाइक कि ठीक है, आई थिंक दैट्स द बेसिक. तो चीज़ें अपडेट हो चुकी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अपडेट आवर सेल्व्स. हमने जो पढ़ाई की वही बच्चा हमारा भी पढ़ेगा, तो यू नो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंट. ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है. देन हमने ना स्टेट बोर्ड को साइड में रखा. वी लाइक, यू नो, लेट्स थिंक अबाउट इट लेटर. एंड देन पीपल टोल्ड मी कि CBSE जो बोर्ड है वो थोड़ा टफ है,
क्योंकि उसमें मैथ्स एंड साइंस थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का है, दिस दैट ये भी पता चला। सीबीएसई में बच्चों को बहुत पढ़ाई करनी होती है, इट्स काइंड ऑफ रैटिफाइंग थिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मुझे लोगों ने सीबीएसई के बारे में बताया। फिर बारी आती है आईसीएसई की। आईसीएसई के बारे में मुझे लोगों ने बोला कि इट इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल। आई गॉट टू नो कि इट इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड उसमें जो लैंग्वेज है उस पर बहुत फोकस किया जाता है। इंग्लिश इज़ a little advanced compared to what we have learned in our days. So this is what ICSE is offering. It's not that you just have to ratify things and go and appear the examination. It's more of practical knowledge that a child is given. A child has to take a more of practical knowledge, and it's all about personality development. I was very impressed जब मुझे पता चला कि ICSE is offering something like this. Then also let's talk about IB, IG, CSE. It's a Cambridge syllabus. These are for the international students, as in जो बच्चा फ्यूचर में अपना फर्दर स्टडीज़ करने अब्रॉड जाना चाहते हैं, दिस इज़ गुड फॉर देम, द IB and the IG, CSE. These are comparatively expensive than state board, CBSE and ICSE. इसकी कैपेसिटी इज ऑल्सो लाइक द रेशियो स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो इज ऑल्सो लाइक 6:1, 10:1. ऐसे हमने स्कूल्स में इंक्वायरी किया था अबाउट IB एंड IG, CSE एक्सेट्रा. तो वी गॉट टू नो ऑल दिस थिंग्स. दैट्स मोर ऑफ इंटरनेशनल करिकुलम कि बच्चा जब अब्रॉड जाएगा तो उसको वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, क्योंकि वो बचपन से ही उनके लेवल की पढ़ाई कर चुका है. So that's the idea behind these international boards. तो आई वाज लाइक लिसन, बच्चा फ्यूचर में अब्रॉड जाके पढ़ना चाहे, इंडिया में पढ़ना चाहे, वो बच्चा फ्यूचर में डिसाइड कर लेगा. लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट. एंड मुझे लगता है कि स्टेट बोर्ड वाले लोग भी आज अब्रॉड में सेटल्ड है. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स who are in banking sectors, in teaching sectors, settled abroad, and people like me in aviation and so many different fields. So I don't think boards इतना matter करता है, but we still need to choose things wisely. So हमने IB and IGCSE को साइड रख दिया. Now comes the CBSE and ICSE. I was very much impressed with ICSE because उसमें लोगों ने फोकस किया कि इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आई वाज लाइक ठीक है, दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्कूल्स इन माई लोकेलिटी फॉर ICSE एंड आई गॉट टू नो कि मेरे पास हार्डली लाइक 3-4 ऑप्शंस है जो मुझे ये करिकुलम प्रोवाइड कर रही है. मतलब ये है कि इन केस देयर इज़ अ रीलोकेशन इन फ्यूचर, वी आर रीलोकेटिंग टू सम डिफरेंट सिटी फॉर एनी वर्क पर्पस और एक्सेट्रा, हमारे पास ICSE के जो स्कूल्स है वो बहुत कम इन नंबर है. या तो वो बहुत दूर है, या तो या तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी. ऐसे ये थोड़े चैलेंजेस मुझे ICSE में आए. And finally I was like ठीक है, there is one school near my place. I actually wanted a school near my place so that I am working, my husband is working, it's all my in-laws जो बच्चों को ले जाना ले आना, they're gonna take care, the guardian, they're gonna take care of my child. So the school has to be within the reach of all of us so that it is easy for the child as well as for the family. अगर बच्चा कहीं स्कूल के लिए दूर जा रहा है, like there is a bus to pick and the drop, bus facilities are of course provided by all the schools, but then that's very time consuming. स्पेशली व्हेन यू आर इन बॉम्बे. आप जब बॉम्बे में रह रहे हो, बॉम्बे दिल्ली जैसी सिटीज़ में जहाँ पे ट्रैफिक इज़ एक्सट्रीमली हाई, वहाँ पे एवरी आवर ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशियल स्टेज में भी उनको स्कूल जाके आके रेस्ट करना एंड बाकी होमवर्क करना, स्टडीज़ करना, दैट हैज़ टू बी अ प्रॉपर पैटर्न. सो वी आर लुकिंग फॉर अ स्कूल नियर बाय कि बच्चे का वहाँ पे टाइम कट डाउन हो जाए, बच्चा वो टाइम शायद अपनी पढ़ाई में या अपने रेस्ट में या अपने गेम्स में लगा ले. तो ये हमारा एक क्राइटेरिया था. तो हमने फाइनली एक स्कूल देखा जो मुझे बहुत पसंद आई. एंड मैंने लोगों के बारे में लोगों से सुना है कि भाई यहाँ पे जो स्कूल्स एंड ऑल है, जो teaching level and all है, that is very good. It's the good quality of education that you are getting from that school. So we were like let's go and check it out. So we went, हमने form fill करा, submit करा, and we were like ठीक है, this is the school that we'll choose for the child. We got a call from them and they were like you are invited for the interview. It's not an interview but it's an interaction with the principal, with the child and the parents. So they basically just want to see you all. So we went for that. उन्होंने हमें एक रूम में बिठा के रखा एंड बच्चों को उन्होंने सेपरेट रूम में बुलाया. बच्चों से आप क्या ही इंटरेक्शन करोगे. आई हैड नो आइडिया कि वहाँ पे बच्चों ने क्या किया. Then lately we got a call, my husband got a random call from a person and it was like you are interested in enrolling your child in our school.
So this is the fees criteria. If you are willing to take admission, you can just pay the fees and secure the admission. So we were like, we inquired about how is it and what is the criteria that you're sharing. They said that you have to pay 4.5 lakhs, जिसमें से आपका yearly fees, academic fees is this much, the school development fees is this much, and this amount is a black money which has to be given, and you will not be getting a receipt for that. So we were like, oh my god, what is this? This is something strange, because whenever you do a payment, be it any payment, you get a receipt for that. यहाँ पे they are asking for such a huge amount and they're not going to give you any receipt for that. That means it is the illegal money, if you say in other terms. So there came a second thought कि भाई ये मसला क्या चल रहा है, जब ये लोग इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, they're not even giving receipt, and सामने से बोल रहे हैं it's gonna be black, we cannot show this money that this is we are taking this. But we also asked, is this only for the child who has not cleared the interview? So they said no, this is not only for the child who has not cleared, this is the criteria for everybody who wants to take admission in our school. Then हमने वहाँ पे पॉज ले लिया, हमने कहा no, we are not opting for this school now, because ये जो सीन था ब्लैक मनी वाला, like they wanted this amount without a receipt. We are like ठीक है, let's not get there. So we excluded that school. We were looking for different ICSE schools, and then वो बहुत दूर थे. Again, the time taking thing, I said I wanted a school which is closer to our place. Then बहुत सारी चीज़ें हुई. I came across a colleague of mine. She was like, ICSE is something that, you know, they are more focused on personality development, this, that, understood. But the thing is, personality development happens from home. So, you know, the way you talk to your child at your home, the way you teach your child at home, the manners that the child learn, it's initially from the home. That can be done even at home. Why are you only looking for ICSE? I think you should go for CBSE. बिकॉज CBSE जो करिकुलम है, अगर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो CBSE इज प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर दैट. स्ट्रिक्ट की बात करो तो अगर बच्चा इनिशियल ग्रेड 1 से वही सिलेबस पढ़ रहा है तो बच्चा कोप अप कर लेगा. अगर आप बच्चे को बचपन से महाराष्ट्र या फिर स्टेट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, देन यू आर गोइंग फॉर ICSE, तो बच्चा कोप नहीं कर पाएगा. महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा महाराष्ट्र बोर्ड ही कर पाएगा, एंड CBSE का बच्चा उस लेवल तक अपने आप को प्रिपेयर कर देता है कि मुझे इस लेवल की पढ़ाई करनी है, तो बच्चा वो अडॉप्ट कर लेता है. तो यू डोंट वरी कि बच्चा हैज़ टू स्टडी अ लॉट, प्रेशर है, दिस है, दैट है. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट इट. एंड वी ऑल्सो हैड अ क्राइटेरिया कि हमें कोई स्कूल चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हो, लाइक स्विमिंग, स्केटिंग, डांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बिकॉज वर्किंग पेरेंट्स को उतना टाइम नहीं मिलता है कि बच्चों को वो अपार्ट फ्रॉम स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी यू नो टाइम दे पाए. एंड बच्चों का अगेन दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. सो अगर स्कूलिंग में ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है तो यू नो you get a full pack of everything with studies, with sports and curricular things. You get to learn everything in just one place. So that's more convenient, I felt. So we were looking for something like that. And another day, like, I was so depressed, so confused कि what am I supposed to do next? ये देखे, वो देखे, school देखे, international school, convent school, and all of these questions, you know, started coming again and again. My daughter fell sick and I had to take her to the doctor. We went to a child specialist nearby. हमारा नंबर आया नहीं था, तो अंदर पेरेंट्स थे विद द चाइल्ड, एंड बच्चों को खेलने के लिए बाहर ना स्लाइड्स एंड ऑल रखे उन्होंने. तो वहाँ पे माई डॉटर वॉज प्लेइंग विद अनदर गर्ल. उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे वेट कर रहे थे. दे वर जस्ट मॉनिटरिंग द चाइल्ड जस्ट लाइक आई वाज डूइंग. एंड देन मैंने से उनसे रैंडम बातें कर ली. गोइंग टू अ स्कूल, हैज शी स्टार्टेड हर स्कूलिंग, विच स्कूल एंड विच करिकुलम. तो उन्होंने भी मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वी हैव ऑप्टेड फॉर CBSE बिकॉज यू नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को वो लोग प्रिपेयर करते हैं. दे स्कूल इज ऑफरिंग द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, दिस दैट. एंड ICSE के ऑप्शंस, वी हैड वेरी फ्यू ऑप्शंस, एंड एवरी स्कूल इज़ ऑफरिंग डिफरेंट सिलेबस. ऐसा नहीं कि आपने इस स्कूल से बच्चे को निकाला, स्कूल में डाला तो वो ICSE का सिलेबस सेम होने वाला है, ऐसा भी नहीं है. ऐसे उन्होंने मुझे बोला कि सिलेबस इज ऑल्सो चेंज, एंड रीलोकेशन में अगेन इट्स अ प्रॉब्लम. यू विल नॉट फाइंड ICSE स्कूल एवरीवेयर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कूल एवरीवेयर. सो आई वाज लाइक ठीक है, आई मेड माई माइंड. आई वाज लाइक सी CBSE इज समथिंग दैट आई फाइंड एवरीवेयर. ठीक है. एंड CBSE का जो सिलेबस है, एवरी CBSE स्कूल हैज़ द सेम सिलेबस. आप यहाँ से निकाल के यहाँ डालोगे तो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, बच्चे को सेम सिलेबस मिलेगा, बच्चा विल नॉट गेट डिस्टर्ब. ठीक है. एंड वंस द बच्चा स्टार्ट टू गेट अ लॉट ऑफ यू नो स्टडी का प्रेशर, दे गेट यूज टू इट वन फाइन डे, एंड दैट विल बी फाइन बाय द टाइम दे आर इन ग्रेड 10.
एंड ठीक है, आई वाज लाइक ओके. Then I started hunting for a CBSE school. Trust me, I got a lot of CBSE schools around me. And मुझे वो जो full pack school चाहिए था ना, with extra curricular activities, with good quality education and good school culture. I got everything in one school. So I opted for an international school. So we took an appointment, we filled the online form, and then we went for a school campus visit. फिर रहा को भी स्कूल बहुत अच्छा लगा. ऑफकोर्स बच्चे जब टॉयज़ एंड बॉल पूल देखते हैं सब खुश हो जाते हैं, तो वो ठीक ही बात है. सो हमें हर चीज़ एक स्कूल में मिल गई. तो इतना सब कुछ रिसर्च करने के बाद एंड टीचर से बात करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, आई केम टू अ कंक्लूजन कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चे का लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें सिर्फ स्कूल पे नहीं डिपेंड करती है. ये उतना ही फैमिली पे, बच्चे पे एंड पेरेंट्स पे डिपेंड करती है. एवरीबडी हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर अ चाइल्ड्स बेटर फ्यूचर. इट्स नॉट जस्ट द स्कूल और द करिकुलम. तो आप भी अगर मेरे जैसे पेरेंट हो जो स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई मेरा बच्चा कौन सी स्कूल में जाए, इंटरनेशनल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, CBSE, ICSE, IG, कौन सा करिकुलम चूज़ करे, इतने सारे अगर आपके भी दिमाग में सवाल है, तो फिर शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. बिकॉज आई माई सेल्फ हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च and finally I have secured the admission for my child in a CBSE international school, wherein I'm getting all the extracurricular activities, the good quality education. And yes, I got to know, I literally had a one-on-one session with the teacher. And CBSE is a good curriculum to choose if you are a working parent. There are chances of you relocating to some other city. Migration is required, so you can definitely offer CBSE. That doesn't mean कि ICSE अच्छा नहीं है, स्टेट बोर्ड अच्छा नहीं है, IB. It completely depends on your choice, wherein you have decided that my child has to go abroad for further studies, my child has to do medical, be a doctor, this, that. तो उसके हिसाब से every curriculum is offering something different. State board has a different advantage, and ICSE has a different advantage. CBSE is offering something different. So I say every boards and every school have something different to offer. It completely depends on you that what are you looking for. So yes, इसलिए मैंने सोचा कि I should make a video because I have struggled a lot. Maybe ये उन पेरेंट्स को काम आ जाए जो मेरे जैसे अभी या जिनके बच्चे अभी स्कूलिंग स्टार्ट करने वाले हैं. So I hope this video was helpful. And if you have been through the same situation, please put your comment below. You're choosing ICSE, CBSE, etc. to hear more about all of these. And wish you all the very best. See you all in my next vlog. Bye bye.